Morning, sir. Good morning. So we were at working of a CRO, right? So till now, any Yes, sir. doubt? Have you gone through the? So in the last class, we have seen the construction and the main part of the CRO and its working. So this is a complete diagram, okay, of CRO, okay. So as are you getting the visual? दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So let us go ahead with the. Already we have discussed so many things in this. Okay. Now we'll see. People are waiting on the waiting. Late join करते हो. Prashanu Kumar. Okay, so here we'll apply input. Okay, in vertical before vertical amplifier, we are applying the input that we want to measure. Okay. Now this will pass to the vertical amplifier. That means it is going to be amplified for certain value, okay, or required value, and then it's going to in the delay line, because this signal also is fed to the horizontal plate. Okay, so as you see, this horizontal plate signal is passing through these three blocks. Okay, so it will take time to reach here, this to horizontal plate. So we are introducing some delay, because at the same time
we want at the vertical plate. At the same time, we want the signal to reach at the vertical plates and horizontal plates. There should be no delay. Otherwise, we'll get different pictures, on the fluorescent display. Okay. So that is why delay has been introduced. Okay. After passing the delay, whatever the time it is, and then it will go simultaneously. Okay. At the horizontal plate and at the vertical plate also. Okay. ठीक है? Okay. So we have two type of supply also, high voltage, low voltage supply. Okay. So high voltage CRT को देते हैं और लो वोल्टेज ऑल द सर्किटरी को चलने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं. So also the low voltage is used for heater of the electron gun to generate the electron beams. Okay. And high voltage required for the cathode ray tube to speed up the beam. Okay. The normal voltage supply is necessary for other control unit of the oscilloscope. Okay. So as we have discussed in the last class also, the horizontal and vertical plate are placed between the electron gun and the screen. Thus, it can detect the beam according to the input signal. Just before detecting the electron beam on the screen in the horizontal direction, which is in x-axis, a constant time dependent rate, that means a time based generator, is given by the oscillator. The signal are passed from the vertical deflection plate through the vertical amplifier. Thus, it can amplify the signal to the level that will provide the deflection of the electron. Okay. सर. हाँ. हेलो. हाँ बोल. सर वो ये जो हम लोग सिग्नल्स दे रहे हैं ये सब प्लेट्स को, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए दे रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए नहीं दे रहे. जैसे कि सिग्नल्स आपका इधर से होके जा रहा है, आपका ये एक वर्टिकल प्लेट पे जा रहा है, एक इस पे जा रहा है, तो वो हम लोग क्यों उसको दे रहे हैं? तो कल क्लास में नहीं थे? कल थे सर. तो कल तो सर हम लोग सिर्फ यही वाला पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलता है और ये दोनों जो है उसका डायरेक्शन को सेट करता है, कुछ वर्टिकल की तरफ करेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल की तरफ करेगा, उससे साइन वेव हम लोग को मिलेगा. तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली, वो समझ में नहीं आया. Obviously this we have discussed this thing ना कल क्लास में, कि अगर कोई मान लेते ऐसा लाइट बीम है, ठीक है, अभी हम इस जैसा ये स्ट्राइक कर रहा है किसी वॉल पे, सपोज अभी हम चाहते हैं कि वॉल पे ऐसा चित्र बने या ऐसा फिगर बने जैसा हम इनपुट दे रहे हैं, तो कैसे होगा? यही लाइट को अगर हम उसी तरह से ऑसिलेट करवाए या उसी तरह से मूव करवाए तो ये काम हो सकता है ना? ऊपर नीचे से करवाए तो वो कितना होगा ऊपर नीचे? जैसा सिग्नल होगा वैसा ही होना चाहिए, है ना? यस सर. तो ये जो सिग्नल आ रहा है जिसको हमको मेजर करना है वो बहुत कम होता है, मतलब मिली वोल्ट, मे बी वोल्ट, राइट? सो वी आर एम्प्लीफाइंग दैट सिग्नल इनटू सम स्ट्रेंथ सो दैट कि जितना प्लेट को चाहिए उसको डिफ्लेक्शन करने के लिए, है ना? तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्या? इनपुट सिग्नल की. ओके. अच्छा, मतलब सर इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सिर्फ हम लोग लाइट प्रोड्यूस करने के लिए रखे हैं ये सीआरटी पे जो डिस्प्ले. यस यस यस. अच्छा, ठीक है सर. बाकी चीजें आपकी इसमें सब
क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट है टू सपोर्ट सम स्मॉल फंक्शन. ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन द ऑसिलोस्कोप, मेन जो आपका यूनिट है. ओके, इसमें आपका इसको एडजस्ट करने के लिए एक नॉब रहता है, लुमिनस स्पॉट्स को, है ना. फिर आपके पास फोकस करने का एक रहता है, मतलब हाई फोकस्ड लाइट आएगी उधर से, बड़ा छोटा करके, है ना, एकदम पिन पॉइंट या उससे थोड़ा मोटा. देयर आर सो मेनी थिंग्स present in the circuit also, but main things are shown here. Okay, okay, shall we go ahead? Yes, sir. यस सर. इतना लेट कौन आ रहा है? विनय कुमार. विनय कुमार, अभी इसको ज्वाइन करने दो, फिर पूछते हैं. विनय कुमार, तुम कहाँ थे जी? तुमको क्या समझ में आएगा, इतना लेट आएगा तो क्लास में? सिर्फ बस अटेंडेंस के लिए आ गया? विनय कुमार, बोल ही नहीं रहे. Yes, sir. हाँ, मतलब क्या हुआ बाबू, इतना लेट क्यों हो तुम? सर चार्ज में लगा हुआ था. अरे, चार्ज में लगा हुआ तो क्या हो गया? सुनो ना, थोड़ा बहुत अच्छा बहाना बनाया करो, जो कभी सुने नहीं. हमको भी अच्छा लगा कि हाँ, लड़का क्रिएटिव है, कुछ तो लेके आया अपने से, है ना. तो अगली बार से जो भी, सबके लिए है ये, कि जो भी बहाना बनाएंगे थोड़ा मतलब वो वाला नहीं, सिग्नल चला गया तो तबीयत खराब है, मतलब कुछ नया एकदम जो कभी सुने नहीं. ठीक, विनय. जी सर. ओके. हाँ सर, टाइम पे आ जाऊंगा. हाँ, अभी तुम बोला है. ओके, चलो. सो this is also same diagram. Okay, you can see how on the top view you can see again somebody is coming, Rajesh Kumar. Okay, रोहित राज. ये लोग कहाँ क्या करते रहता है? See, this is the applied signal. Okay, na, both vertical and after passing through the some circuitry is going to be fed to the vertical plate and horizontal plate at the same time. Okay, and according to the input signal it is going to be deflect. Okay, this is responsible for the, this circuit is responsible for the horizontal adjustment. Okay, and this is for the vertical. This is very important also, because we are going to find the frequency of the signal. So frequency is measured by what? Calculating the time period. Time period you have to calculate. Okay na? Then f equals to 1 by t. Okay. Oh. So see, this is the content. So again, the same picture that was shown at the beginning of this lecture. Okay, so finally this is the thing, clearly you see. Okay,
So this is the electrons. Beam of electron is going to strike to the wall of screen because this is in accelerated at very high speed. Again somebody is coming. Anu Gupta. Okay, so this accelerated electron is going to strike or at the wall of the. कौन है? Two people are waiting. Ritik Sharma. Okay. So this is the what the screen that is going to strike. Okay. So what you will get here? You will get the visual representation because this electron is very operating at very high speed and striking to this, so it will release the energy, whatever the energy he has gained through this time, so it is going to be released here, and this is in the form of light. So you'll see some visuals. Okay, now depending upon the input it will go like this. So whatever the wave you applied, you will get the picture like that. Okay. सर इलेक्ट्रॉन्स वॉल से टकराने के बाद वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है ना? हाँ पढ़े, अच्छा ये पढ़े। नीतीश कुमार सिविल वाला, वाह, इंटर हुआ वो लड़का। इतना लेट आ रहा है, कल से मैं इसका व्यवस्था करता हूँ। ओके, यू गॉट द पॉइंट। कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? अगेन विक्रम। ये लोग आधा क्लास खत्म होने से आता है क्या? क्या नाम था? विक्रम ठाकुर। तो विक्रम ठाकुर, विक्रम ठाकुर, विक्रम ठाकुर। नहीं है। So see, one if there is electron, हाँ, आप उसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दोगे और उसमें एक एनर्जी है, तभी वो दौड़ रहा है। ओके, और अगर किसी चीज से स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा? वो अपना एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, जैसे आप दौड़ रहे हैं, वॉल से टकरा गए तो क्या हुआ? आप एक एनर्जी रिलीज किए। कौन है जी ये लोग? बार बार आ रहा है। अनिमेश, क्या नाम था उसका? Okay, so electron will release the energy in the form of light. Okay. आपने पढ़ा एलईडी कैसे काम करता है? एलईडी जो आप घर में देखते हो, बल्ब जलते, एलईडी। हाँ, यस सर। ऐसे रहता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल लाइक दैट कि इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन at any lower energy, now it will go, if you give some voltage or any light, है ना, it will jump or it will go to the higher energy
and then again it will fall to the lower energy. Okay, so when it will fall to the lower energy means each level of energy having some distinct energy. So यहाँ पे है तो उसके पास कुछ और है, यहाँ पे आएगा तो कुछ और है, तो जब ये यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो एक एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज सर सर एनर्जी फ्लो तो सर हायर टू लोअर होता है ना सर, तो इसमें पहले लोअर से हायर जाएगा फिर लोअर में आएगा। एनर्जी फ्लो कहाँ से एनर्जी फ्लो हायर से लोअर होता है? अरे तुम ये नहीं पढ़े क्या? तुम फिजिक्स में आओ। इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी मटेरियल्स का, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे है, उसको हायर में जाना होगा तो एनर्जी चाहिए ना इसको, तब तो दूसरे सेल पे जंप करेगा। हाँ सर, व्हाट द पॉइंट नाउ? सपोज समझ तुम गया। बाहर से कोई एक एनर्जी दे दिए इसको, अभी ये इस पे नहीं रहेगा, इस सेल में नहीं रहेगा वो, क्योंकि इसके पास अब एनर्जी ज्यादा है, ये दूसरे सेल में जाएगा, ऊपर वाले सेल। ओके, तो यहाँ पे आया, हाँ। लेकिन जब इसके पास यहाँ से अगर नीचे आएगा तो फिर से उसको उसी एनर्जी लेवल पे आना है, तो मतलब जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रिलीज करना हो, तभी वो आ सकता है। ओके, तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी ना, वो फॉर्म ऑफ लाइट में होगी। ओके, यस सर। गॉट द पॉइंट? So this concept has been used here. Okay. Two people are waiting. वो अभी आ रहा है, आधा क्लास खत्म हो गया, उसको क्या समझ में आएगा बताओ? कौन है? तीन लोग पढ़ा हुआ सर है। एक निहाल, हम ही है सर, लैपटॉप ज्वाइन किए हैं, हम पहले से हैं क्लास में। निहाल चंद्र वर्मा और राजदीप सोरेन। ये बाहर ही रहेगा, आपको एंट्री नहीं। हेलो सर। हाँ, सर हम निहाल वर्मा सर, हम सर पहले से है क्लास में, हम अभी लैपटॉप से ज्वाइन किए इसीलिए दिखा रहा है। अच्छा चलो, तुमको एडमिट कर रहे। ये नहीं आया, अब नहीं आएगा। प्रतीश चंद्र, प्रतीश चंद्रवंशी। ओके, ठीक है। सर I एक think all- कंफ्यूजन था। हाँ बोलो। सर इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। मतलब किस टाइप का एनर्जी सर, कैसे? अरे पावर, बीम टाइप का चीज रहता है, पहले जनरेट किए, हाई स्पीड से उसको एक्सेलरेट करने के लिए। हाँ, उसको क्या देंगे? हाई वोल्टेज से ऑपरेट करेंगे। देयर इज ए कंस्ट्रक्शन लाइक दैट। ओके, कोई चीज को, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, कोई चीज मतलब इलेक्ट्रॉन है, या तो आप उसको खींच के एनर्जी दे सकते हो। वो कैसे खींचेंगे उसको? खींच के मतलब सपोज जैसे होता है ना, कोई किसी चीज को आपको स्पीड बढ़ाना है, तो अगर मान ले तो पूरा हाई पावर का चुंबक उसके सामने रख दे, लोहा के सामने, तो आप उसको खींच सकते जोर से, है ना? यस सर। तो अभी Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे एनर्जी दे सकते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और दौड़ने लगे? हाई वोल्टेज सर। Okay. So first of all, what is happening here? Bunch of electron is generated through electrodes. Okay. इलेक्ट्रोड में पता है ना, बहुत सारा ये रहता है। सबको एडमिट हम कर लिए हैं, लेकिन अभी कल से ना, आई एम वार्निंग यू, प्लीज ज्वाइन द क्लास एट द टाइम, एवरीबडी।
फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली 5 मिनट विल बी देयर, उसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है। ओके, so on next class onwards, keep this in mind. So you got the point? Yes, sir. बीच में गड़बड़ हो गया, कहा मैं क्या बोल रहा था, मैं इससे हट गया। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं सर, वही बता रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को सर आप आप बता दें कैसे उसको पावर दिया जाएगा उसको एक्साइट करने के लिए। हाँ, कैसे पावर दिया जाएगा मतलब? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने से आप ना हाई वोल्टेज दिया जाएगा, वही हाँ बता हाँ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बस बस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll generate the bunch of electrons. ओके, जब आप किसी भी चीज को ना मतलब जो मटेरियल्स है उसके जो लिमिट्स है, मतलब कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड रहता है, एक कंडक्शन बैंड रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं कंडक्टर के लिए। ओके, दिस टू आर ओवरलैप। ओके, विल डिस्कस दिस थिंग आल्सो इन द कमिंग क्लासेस। ठीक है, तो अभी क्या है, जब और ज्यादा वोल्टेज आप दोगे तो ये मटेरियल से बाहर निकल के आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके, कंडक्शन बैंड से भी अगर ज्यादा एनर्जी दोगे तो इधर से भी बाहर निकल के आ जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत बंच अमाउंट में रहेगा। आप उसको क्या करोगे, वो एरिया में हाई वोल्टेज मतलब क्रिएट और एनर्जी इसके पास आएगी एंड ही विल स्टार्ट टू मूव इन गाइडेड डायरेक्शन। ओके, एंड इट विल स्ट्राइक। इतना फ्रैक्शन ऑफ एकदम मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में सब हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलेगा तो हाँ यहाँ से चला 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 फिर जाके। गॉट द पॉइंट? सर इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करने के लिए क्या मतलब यूज करते हैं? अरे बाबू, अगर मान लेते पाइप में पानी जा रहा है बहुत तेज, ठीक, अगर बहुत फोर्स के साथ है तो तुमको गाइड करने की जरूरत है? नहीं। बाहर निकलता है अगर पाइप से तो अगर बहुत फोर्स के साथ है, जितना एरिया दूर तक तुमको जितना मतलब करना है, भेजना है, उतना हम जोर से कर देंगे तो चला जाएगा ना उतना दूर। हाँ सर। गॉट द पॉइंट? जैसे रोशनी मारते ना टॉर्च से। सर 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 तो फिर ये मतलब ये स्क्रीन से ही क्यों टकराएगा, और दूसरा जगह भी तो टकरा सकता है ना, अनगाइडेड रहेगा तो। अनगाइड, हाँ ऑब्वियसली, तो अनगाइडेड क्यों रहेगा? हम तो बोल ही रहे हैं ना कि जितना दूर तक आपका स्क्रीन है और जहां से आप छोड़ रहे हो उसका तो डिस्टेंस पता है ना बनाते समय। जब आप इसको बनाओगे, डिजाइन करोगे, तब तो आपको पता है, तो आप कितना वोल्टेज देने से डायरेक्ट टकराएगा ये भी पता है। वो तो सर कैलकुलेट कर दिया जाएगा ना बनाते समय। ऑब्वियसली, जैसे आप टॉर्च से रोशनी, मतलब टॉर्च है, टॉर्च जलाते हो तो क्या मतलब तिरछे लाइट चला जाता है? नहीं सर। सीधा ही जाता है ना। हाँ सर। समझ रहे हो बात को? तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक ही जगह पे टकराएगा स्क्रीन में, कहीं भी टकराना हो तो? एक ही जगह पे कैसे, एक ही जगह पे टकराएगा तो वो वेव बनेगा, वेव से हम कंट्रोल कर रहे वो हैं ना तो उसके मूवमेंट को। स्कैटर्ड होगा ना सर। सर तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वही पूछ रहा है। कंट्रोल करने के लिए कुछ यूज नहीं किया जा रहा है, वो एक ही जगह पे टकरा रहा है। अगर आप इनपुट में कुछ नहीं दोगे तो एकदम मिडिल में टकराएगा और एक जैसा स्पॉट सा दिखेगा। जब जो आप सिग्नल मेजर करने के लिए दोगे वही ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट में अप्लाई होगा, तो उस तरह से वो अप डाउन होके ऐसा शेप बनाएगा। सपोज पहले यहाँ, हाँ चलो,
यहाँ पे ऐसे मिडिल में टकराया हुआ है। अब जब तक कोई इनपुट इस पे नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट ही आएगा और ऐसे आएगा। अभी इस पे इनपुट दिए साइनसोइडल, ठीक है, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज ये प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अभी क्या होगा? जो सिग्नल आप दिए हो, तो अभी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, तो ऊपर खींचेगा ना हल्का। जैसा ये सिग्नल का स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही ये ऊपर उठेगा। ऊपर उठा, ऐसे ऊपर उठा, तो ये वाला आपको ग्राफ मिल जाएगा। फिर से डाउन होगा तो नीचे वाला ग्राफ मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? जैसे आप समझ लो कि हाथ Yes, में sir. वो लिए हो पाइप, ठीक है, पानी वाला, और सामने दीवार पे कुछ आप बना रहे हो आकृति, तो आपका जैसा हाथ का मूवमेंट रहेगा वैसा ही बनेगा। Yes, sir. और हाथ का मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? इनपुट का सिग्नल। जैसा इनपुट्स है, जिस शेप का इनपुट है, अगर ऐसा वाला इनपुट रहेगा तो वैसा फिगर बनेगा। अगर ऐसा वाला इनपुट पे रहेगा, जो सिग्नल आपको मेजर करना है, ओके, तो ऐसा वाला बनेगा। समझ में आया? Yes, sir. और कोई दिक्कत? See, simply first of all you understand कि what is CRO? CRO is a device that, है ना, electronics device that will represent or that will show the graphical view of any signal, and at the same time you can measure the magnitude and frequency of the signal. अविनाश कुमार बोलो। Sir, your Yes, voice sir. is not coming proper. Yes, sir. हाँ, नहीं, somebody is saying my voice is not coming clearly. No, Is sir, it- it is clear, sir. It is coming or not? Sir, it is buffering. Yes, sir, it is coming clear. Sir, it's clear. Okay. I think your net is weak. Those who are telling that voice is not coming, because some students are getting clear voice. Okay. ठीक है, हाँ। So कहाँ थे हम लोग? I was telling that you what is CRO. अब हमको देखना है उसमें मेन पार्ट क्या है। तो मेन पार्ट ये है डिफ्लेक्टिंग प्लेट हॉरिजॉन्टल, और ये जहाँ से जनरेट हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रोड गन, ये वो जो भी चीजें लगी हुई है साथ में, एंड देयर इज अ पावर सप्लाई आल्सो। ओके, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द। ऐसे तो बहुत सारे हैं, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। द हाउ इट्स वर्किंग, जस्ट यू हैव टू नो। सो ऑब्वियसली we have discussed all the points here, कि how this is working. Okay, आगे बढ़ा जाए क्या? और कोई डाउट रह गया किसी को? सर, आउटपुट का कलर मतलब एक ही रहेगा या फिर कलर चेंज होता है इसमें? नहीं, स्क्रीन में जो दिखेगा वो कलर जो हमारे पास है वो उसमें एक ही रहता है, बाकी चेंज भी कर सकते हो आप, जो वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना लाइट का वेवलेंथ होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देख पाते हैं कैसा कलर है। ओके, वो डिजाइन में हम चेंज कर सकते हैं, रेड हो सकता है, ये कलर हो सकता है। ओके, जिस हिसाब से आप डिजाइन करोगे उस हिसाब से आपको कलर मिल जाएगा। ओके, जैसे एलईडी का कलर होता है यस ना, सर। आप Yes, sir. आगे हम लोग एलईडी जब पढ़ेंगे तो दिखाएंगे कैसे एक लाइट का कलर अलग अलग कैसे आता है सेम ही चीज से। ओके, छोटा छोटा एलईडी जो कभी ग्रीन देखे होगे, कभी रेड देखे होगे, कभी कुछ देखे होगे, वो डिपेंड्स करता है उसके वेवलेंथ पे। जो एनर्जी निकल रही है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है उसका कलर।
कि आपको कैसा दिखता है वो। पढ़े थे ना जब प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। यस सर, यस सर, Yes, हायर sir. वेवलेंथ आता है तो रेड दिखता है। हाँ ओके, तो ये बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए, तब आप एक दूसरे को लिंक कर पाओगे, जोड़ पाओगे। तो कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, तो जो 10 12 इसीलिए बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट उठ के इधर आया है बहुत सारी चीजों में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Yes, sir. अब देखते हैं उसका अटेंडेंस भी देना होगा ना। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दिस थिंग। 2 ही मिनट टाइम। हाँ अटेंडेंस दे देते। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग। अभी आ रहा है ये सरोज कुमार, ये सब क्या है? अटेंडेंस बनाने के लिए आ रहे हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। अरे इतना लेट हो रहा है ना, तब तक कट ही ना जाए। ओके, अरे चैट कहाँ गया? चैट, प्लीज fill the attendance. You have 5 minutes or 3 to 2 minutes. In the chat box is there. फटाफट खोल लो नहीं तो बंद हो जाएगा।